हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माइंड बूस्टर। सो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रीजनल ग्रुपिंग। सो गाइस, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। वेरी फ्यू रीजनल ग्रुपिंग एग्जिस्टेड बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वार। तो गाइस, सेकेंड वर्ल्ड वार के पहले बहुत कम रीजनल ग्रुपिंग होते थे। The great international upheaval of the 1930 and the 1940, followed by demolition of the European imperial order and the decolonization of most part of the world, led to a surge toward regional grouping. तो ये जो चीज़ें हुई वर्ल्ड वार के बाद 1930 1940 के बाद जो भी हुआ, यूरोपियन एम्पायरल ऑर्डर का डिमोलिशन, देन डिकोलोनाइजेशन, ये जो भी चीज़ें हुई उसकी वजह से क्या हुआ, रीजनल ग्रुपिंग का स्टार्ट हुआ. The first reference to regionalism was made in the preliminary draft of the United Nations Charter, underlining the role of regional bodies for dealing with peace and security of the world. Then, in the early years of the Cold War, the collective security mechanism of the UN system was not very effective because many of the selective regional security arrangements, such as the NATO, Warsaw Pact, Southeast Asia Treaty Organization, Australia, New Zealand, United States Security Arrangement, and the Organization of American States had subserved the interest of one or the other superpower. तो गाइस, ये सारी organizations है. Around the same time, a number of loosely knit regional economic groups such as the ECM and Latin American Free Trade Area cluttered the world map. Alongside the decolonized countries of Africa and Asia evolved themselves into groups both inside and outside the United Nations. The group of 77, that is G77, that is guys वो G77 है, and the group of non-aligned movement नाम countries in an attempt to bargain collectively with the industrially advanced countries. तो guys, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि आपने देखा. देन कुछ डिकोलोनाइज कंट्रीज़ है अफ्रीका के, एशिया के, तो वो अपने आप को दोनों भी इनसाइड और आउटसाइड यूनाइटेड नेशन के रखते हैं. फिर ये कुछ नॉन अलाइंग मूवमेंट्स है जिसमें जो कंट्रीज़ है जिन्होंने अमेरिका के साथ अलाइनमेंट नहीं किया है वो आते हैं. देन this mushrooming of regional structures and organization yielded place to a number of sub-regional grouping within and laterally across the continent. Such of this regional organization include importantly the Association of Southeast Asian Nation in 1969, Andean Common Market, Caribbean Common Market, and Economic Community of West African State, South African Development Coordination Conference, Gulf Cooperation Council, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. तो गाइस, ये और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है अलग अलग. देन गाइज, व्हाट आर द थियरीज ऑफ रीजनलिज्म. तो रीजनलिज्म के थियरीज क्या है, कुछ थियरीज दिए हैं. पहले है फंक्शनलिज्म एंड नियो फंक्शनलिज्म. तो गाइज, इसमें क्या आता है, जो फंक्शनलिस्ट थियरी है वो दो कंपोनेंट के ऊपर फैक्टर करती है. पहला है कि द पावर ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन द रोल ऑफ, जो सोसाइटी की पावर है वो किसके ऊपर बेस्ड करती है, इंटरेस्ट ग्रुप के ऊपर, प्रोफेशनल एसोसिएशन के ऊपर, प्रोड्यूसर ग्रुप्स एंड लेबर यूनियन एंड कल्चरल and scientific organization which and push for regional integration by providing a supporting societal base. Second है the supranational institution which provide political organization and capacity to mobilize interest and access to policy making influence. So together the functionalists argue they contribute to regionalism. तो जो फंक्शनलिस्ट है वो दोनों ये मिला के क्या करते हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं कि वो रीजनलिज्म में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. सेकंड आता है नियो फंक्शनलिज्म. तो नियो फंक्शनलिज्म में तीन कंपोनेंट आते हैं. पहला है बैकग्राउंड कंडीशन, दूसरा है प्रोसेस कंडीशन, एंड थर्ड वन इज कंडीशन दैट इनकरेज और डिस्करेज टास्क एक्सपांशन. तो बैकग्राउंड कंडीशन में क्या आएगा, रीजनल इंटीग्रेशन वुड ऑकर फर्स्ट अमॉन्ग कंट्रीज विद अ सर्टन डोमेस्टिक एनवायरनमेंट. तो रीजनल इंटीग्रेशन कैसे ऑकर होगा कि एक डोमेस्टिक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा पहले, उसके बाद इट वुड ऑकर इन लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्रीज विद कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज. तो कहाँ पे जो लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती है जिसका इकोनॉमीज़ कैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ होती है, डिफरेंशिएटेड सोशल स्ट्रक्चर होता है, प्लुरलिस्ट इंटरेस्ट ग्रुप होता है, then here ethnic rivalries and class conflict would be less intense and would gain from expansion of capitalism to the regional
लेवल। और गाइस यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट, क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है, इथनिक का चीज़ें हैं, ये बहुत कम इंटेंस है, क्योंकि इसके वजह से जो कैपिटलिज्म है उसको कम कर दिया जाता है और इसके ऊपर ज़्यादा काम किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो कैपिटलिज्म है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। सेकेंड वन इज़ द प्रोसेस कंडीशन। तो रीजनल इंटीग्रेशन वुड ऑकर इन कंट्रीज विद डेंस नेटवर्क ऑफ इकोनॉमिक एक्सचेंज। तो रीजनल इंटीग्रेशन कहाँ पे होगा? जहाँ पे जो इकोनॉमिक मार्केट है, इकोनॉमिक एक्सचेंज है, वो ज़्यादा होगा, डेंस होगा। जैसे एक कंट्री दूसरे कंट्री में उनका गुड्स बेच रही है, खरीद रही है, तो वो एक ही कंट्री में नहीं, अलग अलग कंट्री में, जिसका नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा हो, उसमें जो उनका ट्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा हो, लेबर माइग्रेशन, टूरिज्म एंड फ्री फ्लो ऑफ प्रोडक्टिव फैक्टर्स। Then conditions that encourage or discourage star expansion. These conditions are those that are a spillover with linkages among different sectors, serving a transmission belt of integration. Example, increased regional trade may mean increased coordination of monetary fiscal policy. तो अगर रीजनल ट्रेड ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली मॉनेटरी या फिजिकल जो पॉलिसी होती है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, उनका कोऑर्डिनेशन इंक्रीज़ होगा। क्योंकि गाइस अगर हम जो हमारा ट्रेड है वो इंक्रीज़ करते हैं अलग अलग रीजन्स में, तो हमारे पास मनी आएगा, दैट इज़ हमारी मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ेगी। सेकेंड वन इज़ द रियलिज्म। सो the theory of realism underscore that the preference of state are determined by their position in the international distribution of power. तो रियलिज्म कहता है कि जो प्रेफरेंस होता है स्टेट का वो किसके ऊपर बेस होता है? वो पोजीशन के ऊपर बेस होता है कि इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कैसा होती है, उसके पोजीशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होती है। सो इट इज़ नॉट द नेचर ऑफ सोसाइटल ग्रुप एंड एट्रीब्यूट ऑफ स्टेट एंड सिमिलैरिटीज अमॉन्ग कंट्रीज दैट मैटर। ऑन द अदर हैंड व्हाट मैटर इज़ द प्लेसमेंट ऑफ द स्टेट इन द इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। सो इसमें वही बताया कि जो प्लेसमेंट होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है rather than the societal group or attributes of the state. Then yet when states join a regional union, they do commit to cooperation with a stable membership over a long period of time. According to realists claim that in the bipolar power distribution during the Cold War, what encouraged deep integration within